Oh, your voice is not clear. Please speak loudly. Keep the microphone near your mouth. Yeah. No, your voice is very low. Your voice is very low. Cannot hear. Try again. No. Okay, I'll go to Yash. Yash? Yash, can you hear me? Sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you please define potential energy of a body? The energy possessed by a body at a rest due to its position or shape or size is called potential energy. So potential energy is possessed by a body due to its position. Okay, position above the ground. That is basically the height. Or it is possessed by a body due to its changed configuration. Don't say size and shape, but say changed configuration. Okay, for example, stretched rubber band or compressed spring. Stretched rubber band or compressed spring, their both of their configurations are changed by applying external force. Now when the force is released, they again come back or they regain their original shape. So that means they have some energy stored in them. So whenever we change the configuration of such elastic materials like rubber band or spring, we are actually storing energy in them. So that is also potential energy. When we are lifting something to a certain height, we are storing potential energy in them. Okay, so these both are the types of potential energy. Position above the ground, like flying bird or bird sitting on a tree, that's position above the ground. So bird has got potential energy. Now Yash, can you tell me, ये जो फर्स्ट टाइप की एनर्जी है जिसमें पोजीशन अबाउ द ग्राउंड इन्वॉल्व है, उसको क्या नाम क्या है उसका? Gravitational. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल. उसका फॉर्मूला क्या है यश? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? इफ यू डोंट नो यू कैन टेल आई डोंट नो. I don't know. दिस इज द फॉर्मूला, नोट करो इसको. तुम जब वीडियो लेक्चर देख के नोट्स लेते हो तो ये सब लिखते नहीं हो क्या? मैंने बताया है उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है mgh. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है: मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस एंड हाइट अबव द ग्राउंड. जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जितनी ज़्यादा हाइट अबव द ग्राउंड उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. जी की वैल्यू किसी भी प्लेस पे कांस्टेंट रहती है, और फॉर अर्थ वी टेक द वैल्यू ऑफ जी एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सो जी you can say for a place it is constant, so we don't consider g as a factor which affects gravitational potential energy. और ये जो दूसरा टाइप है, नियति, कैन यू टेल मी द पोटेंशियल एनर्जी possessed due to the changed configuration of a body? Elastic potential energy. Very good. This is elastic potential energy. ठीक है, इसका फॉर्मूला हमें नहीं दिया है, सो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट्स फॉर्मूला. ठीक है,
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ थियरी कॉन्सेप्ट हमें एक्सप्लेन किया है. So that is, these are the types of potential energy, two forms basically, and their examples. Remember them, please. Okay, next, Prince. Prince, you are going to help me derive the expression for gravitational potential energy. मतलब तुम्हें ये U इज इक्वल टू एम जी एच को डिराइव करने में मेरे को हेल्प करना है. बताओ, हाउ डू वी डिराइव इट? All the values, m, the mass of the body. ओके, देखो, इसको डिराइव करने के लिए you have to write statements like this. Let a body of mass m be lifted to a height h. ठीक है? Therefore, work done on the body. ठीक है, वर्क डन ऑन द बॉडी कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बताओ, एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको मैं एक हाइट पे लिफ्ट कर रहा हूँ, फोर्स कितना एक्सर्ट होगा उसके ऊपर प्रिंस? कितना फोर्स एक्सर्ट होगा उसके ऊपर प्रिंस? फोर्स होगा एक्सर्ट m इंटू जी. फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे मास m है, एक्सेलरेशन इज g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उस बॉडी का? h. वेरी गुड. ठीक है, सो वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू एम जी एच. नाउ वी नो दैट वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी. ठीक है, work done in the body is equal to energy stored in the body. Energy, what kind of energy is stored? This is a special energy which is known as potential energy, gravitational potential energy. So gravitational potential energy stored in the body will be equal to mgh. mgh. ठीक है, so this is how you derive. Simple derivation है, बहुत simple है. Yes. Please remember it. Yes. Okay, so that is one of the derivation. There is one more important derivation. mgh को तो derive कर लिया हमने, ठीक है. There is one more important derivation for kinetic energy. Siddhi, can you help me derive the expression for kinetic energy? Yes, sir. What should be my opening statement? Let the mass be m. Let a body of mass m at rest होता है ना body of mass m, हाफ mv square में. At rest be accelerated with acceleration a and achieve a final velocity v in time t. एक बॉडी है
देखो ये सारी चीज़ें डेरिवेशन में हमको कंसिडर करनी पड़ेगी। एक बॉडी है जिसका मास है m, वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे है मतलब क्या है कि u इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेटेड विद एक्सेलरेशन a एंड Sir? अचीव, यस, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी। नहीं बेटा, फाइनल वेलोसिटी तो वो अचीव करेगा ना। ओके, सो लाइक ठीक है, दोनों से हो सकता है, दोनों से हो सकता है। तो टेल मी हाउ यू आर टेलिंग, हाउ यू वांट मी टू डू इट। फाइनल, So in the book where I read was, and in the video also, the initial velocity was v and the final velocity was 0. ठीक है, सो एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसमें, राइट? ओके, मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ कर रहा हूँ, वैसे भी डिराइव कर सकते हैं, बट एज यू सेड, लेट मी जस्ट चेंज इट। ठीक है, a body of mass m moving with a velocity u be constantly acted upon by a retarding force F and finally come to rest in time t. Finally come to rest in time t after covering a distance s. ठीक है, सो एक बॉडी है जिसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स f एक्ट कर रहा है और फाइनली वो रेस्ट पे आ जाता है। रेस्ट पे आ जाता है इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है और टाइम लगता है उसको t, और डिस्टेंस इतने मोमेंट में उसने कवर किया है s. सो दीज आर ऑल द, यू कैन से, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स फॉर द डेरिवेशन. सो हाउ डू वी बिगिन नाउ? First we will write force is equal to mass into acceleration. Exactly. The force acting on the body is equal to mass times acceleration. And the kinetic energy is the work done by the body before coming it to rest. Yes. Kinetic energy Equal to work done. of body is equal to work done by the body. Kinetic energy of the body is equal to work done by the body. ठीक है, so work done का फॉर्मूला क्या है? Force into displacement. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे फोर्स है मेरे पास m इंटू ए टाइम्स डिस्प्लेसमेंट s. यस, सही जा रहे हैं. Then we will take the equation v square is equal to u square plus 2as. You are right. So basically we'll use equation of motion, the third equation of motion. ये बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, फाइनल 0 हो जाता है और उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, मतलब वो एक्सेलरेट होगा, रिटार्ड होगा बेसिकली. सो वी कैन यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. नाउ v इज 0 ओवर हियर, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है इसकी, u स्क्वायर प्लस 2 इंटू as, ये एज इट इज रहेगा. सो u स्क्वायर या फिर s की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट? विल फाइंड द वैल्यू ऑफ s. सो s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, तो s मिल जाएगा मुझे. तो m इंटू ए टाइम्स माइनस यू स्क्वायर बाई 2a. सो आई कैन कट दिस a, एक्सेलरेशन को मैं कट कर सकता हूँ, ठीक है?
सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी में मुझे मिल गया अब एक मिनट, आई थिंक यू थिंक दैट u का वैल्यू हम लोग डालेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से, नहीं, तो वो यू स्क्वायर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से करेंगे। तो यही इक्वेशन से किया है, और इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v। ओह या, यस, इनिशियल वेलोसिटी की जगह v डाल दिया है। Oh yes, there is one more thing which is wrong here. The acceleration. Negative लेना है, yes. So minus u square is equal to 2 into minus a into s. So u square is equal to 2as आएगा और s is equal to u square by 2a आएगा। मैं वही सोच रही हूँ नेगेटिव साइन कहाँ पे आएगा। So we can simplify this as m times a टाइम्स u स्क्वेयर बाई 2a, a कट, तो ये हो जाएगा mu स्क्वेयर बाई 2, और इसको हम लोग u को वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग v भी ले सकते हैं। सो दिस विल बी हाफ m v स्क्वेयर, विच इज द v इज द इनिशियल वेलोसिटी, द वेलोसिटी विथ विच द बॉडी वॉज मूविंग। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर का डेरिवेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू यश, नो नॉट यश, आर्यन। आर्यन, state the work energy theorem. If suppose the kinetic energy on a body is equal to the force applied on a body to complete the work. I don't think it's similar to that. वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी is stored as energy in the body, so it is equal to change in its kinetic energy. Work done on a body is equal to change in its kinetic energy. Suppose I'll give you an example, Aryan. Suppose you are riding a bicycle, ठीक है, and the bicycle is already moving, so bicycle is having kinetic energy, okay, but now what you are doing, you start pedaling with more force. So what will happen to the bicycle? The bicycle will move with greater speed, its kinetic energy will increase. So whatever work you are doing on the bicycle has got changed into its kinetic energy, and the kinetic energy has increased. So work done by you is equal to change in its kinetic energy. So work done on a body is equal to change in its kinetic energy. Work done on the body, W is equal to KEF minus KEI. Final kinetic energy minus initial kinetic energy. So work done is equal to half mv square minus half mu square. So work done is equal to half m v square minus u square. ठीक है, सो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम. इसका भी कहीं ना कहीं कोई न्यूमेरिकल में यूज होता है. ओके, सी हियर द फॉर्मूला इज ऑल्सो गिवन. Okay, next, Achal. Achal, can you please give me the formula for kinetic energy in terms of momentum of a body? Kinetic energy और momentum को relate करने वाला formula.
देखो मैं तुम्हें डिराइव करके बताता हूँ। आचल, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वेयर। इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ टाइम्स एम वी टाइम्स वी, राइट। वी स्क्वेयर को अलग अलग कर दिया मैंने। अच्छा, एम वी की जगह मैं लिख सकता हूँ पी, दैट इज मोमेंटम, दैट इज हाफ टाइम्स पी टाइम्स वी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी वी बाई 2। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी वी बाई 2। ऐसा ही कुछ रिलेशनशिप है या कुछ अलग है? हाँ चल, कैन यू चेक योर नोट्स और द टेक्स्ट बुक? इसके और भी तरीके हैं लिखने के इसको। ये तो मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा मोमेंटम के टर्म्स में, तुम मोमेंटम का फॉर्मूला भी लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। क्या? वी स्क्वेयर बाई 2m, पी स्क्वेयर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वेयर बाई 2m। हाँ कर सकते हैं, शायद वैसे भी कर सकते हैं। पी स्क्वेयर बाई 2m विल बी एम वी, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई 2m। अगर m को कट कर दिया तो मुझे मिलेगा एम वी स्क्वेयर बाई 2। हाँ, पी स्क्वेयर बाई 2m भी सही है। ये मास के टर्म्स में है ये फॉर्मूला, ये वेलोसिटी के टर्म्स में। सो दिस इज, यू कैन से, वन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं इसको मास के टर्म्स में लिखूं तो ये हो जाएगा पी स्क्वेयर बाई 2m। ये इसका सेकेंड फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, मोमेंटम और मास के टर्म्स में। फर्स्ट फॉर्मूला था मोमेंटम और वेलोसिटी के टर्म्स में, ठीक है। सो ये दो फॉर्मूला है। अच्छा, नाउ टेल मी द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल है। आचल, हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है, देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसको मैं के लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी वी बाई 2, और यहाँ पे आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m। ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम फ्रॉम दिस वन, डिराइव्ड फ्रॉम दिस वन? पी का क्या फॉर्मूला होगा आंचल? टू को वो साइड लेके जाओ, 2k, v को नीचे लेके जाओ बाई v। या तो ये फॉर्मूला होगा या तो दूसरा फॉर्मूला होगा, 2m को वो साइड लेके जाओ, 2mk, लेकिन फिर p स्क्वायर मिलेगा, इसको पूरा अंडर रूट में डाल दो। सो अंडर रूट ऑफ 2mk या फिर 2km, जैसे भी तुम्हें लिखना है। सो दीज आर द टू फॉर्मूले फॉर मोमेंटम एंड टू फॉर्मूले फॉर काइनेटिक एनर्जी। जो सिचुएशन में तुम्हें जो भी फॉर्मूला की ज़रूरत है तुम यूज़ कर सकते हो। दो फॉर्मूले मोमेंटम और दो फॉर्मूले काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। प्लीज़ इसको नोट कर लो। ये न्यूमेरिकल में आते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत, बिकॉज दिस इज़ इग्नोर्ड जनरली। नोट कर लो प्लीज़ ये दोनों को, दो काइनेटिक एनर्जी और दो मोमेंटम के फॉर्मूले।
Hmm? Hmm. Okay, let's go ahead. Okay, next question is for Rishi. Rishi? Yes, sir. Rishi, please help me with this. I don't remember this. Name 3 forms of kinetic energy and give 1 examples of each. Sir, gravitational kinetic, rotational kinetic energy, Okay, rotational kinetic energy. Okay, anything else? vibrational kinetic energy, Okay, translational kinetic energy. yes, you are right. I almost forgot about them. Translational, vibrational and rotational. ट्रांसलेशनल मतलब अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इट हैज़ गॉट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. व्हाट अबाउट वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी? अगर बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रहा है अबाउट अ मीन पोजिशन जैसे पेंडुलम तो उसके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है. और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है? A wheel, जो बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है. The body in circular motion has got rotational kinetic energy. In fact, wheel, it is very interesting to note, wheel has got both the types of kinetic energy. Wheel has got rotational kinetic energy as well as translational because wheel rotate भी होता है अपनी एक्सेस पे और सीधा भी चलता है. मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आगे भी जाता है तो उसके पास दोनों काइनेटिक एनर्जी होती है, रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल. गुड. Okay, next question is for Krishab. Krishab, can you hear me? A pebble is thrown up, question number 19. It goes to a height and then comes back to the ground. State the different changes in the form of energy during its motion. एक पेबल को ऊपर फेंकते हैं हम लोग, वो एक हाइट पे जाता है और फिर वापस नीचे आता है. सो व्हाट आर द चेंजेस इन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन? चल मैं तेरे लिए इजी कर देता हूँ. स्टेज 1, ठीक है, व्हेन इट इज थ्रोन अप. what kind of energy does it possess when it is thrown up? Kinetic energy. Very good. It possesses kinetic energy and it is apparently maximum. Okay, kinetic energy at the time when it is thrown up is maximum because it is near the ground, so gravitational potential energy will be almost zero. But when it is thrown up with the force, the velocity will be maximum and kinetic energy will be maximum. Stage 2, when it is traveling up, what happens to the kinetic energy? After throwing, we have thrown already, now it is going up. What is happening to the kinetic energy? तू किसी बॉल को ऊपर फेंकता है तो तू देखता है कि उसका स्पीड कम होता है धीरे धीरे, है ना? सो कैन वी से दैट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस? देन व्हाट, वेयर डज दिस एनर्जी गो? Where does this energy go? In what form does it convert into? It gets converted into potential energy. So kinetic energy decreases and potential energy increases. Krishab, can you give me a reason why potential energy increases?
कोई भी बॉडी, Gravity. yes please. Because the gravity is acting upon the kinetic energy. No, because the body is thrown up, its height is increasing above the ground. So when the height is increasing, its potential energy will obviously increase. But where does this potential energy come from? It comes from the initial kinetic energy. Okay, so stage 2 traveling up. Stage 3 at the top. Top पे क्या होता है? कृषभ, what about kinetic energy and what about potential energy? At the top, it stops for the. Yeah, for a moment it for stops. 2 seconds. Yeah, for a moment you can say, don't say 2 seconds. Yeah. So what happens to the kinetic energy? Changes to potential energy. You can say kinetic energy becomes 0 and it completely changes into potential energy. So potential energy at the top where it stops for a moment becomes maximum. Yeah. Now stage 4. This is actually the next part of the chapter. ये next part जो conservation of energy वाला part है उसमें यही सीखना है अपने को. Stage 4, falling down. When it is falling down, what happens to the kinetic energy and what happens to the potential energy? अभी वो नीचे गिर रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या था? मैक्सिमम था. What will happen to potential energy? It will start decreasing. Yes, because the height is reducing, na, falling down. But kinetic energy will start increasing. As you see, anything which is thrown up, it comes down with a speed which is increasing moment by moment. So the speed is increasing, so means kinetic energy is increasing. And stage 5, finally, क्या होता है? At ground, just before it is going to touch the ground, what is the kinetic energy? Just before, listen to my question carefully. Just before it touches the ground, kinetic energy को क्या होता है? Starts decreasing. Kinetic energy starts, see, it was increasing, it cannot decrease now. Kinetic energy becomes maximum Max. when it just before it touches the ground, and potential energy becomes 0. 0. Right? Initially potential energy was 0, kinetic energy was maximum. Finally, if you see, kinetic energy is maximum, potential energy is 0, the same state. So energy पूरे process में conserve हो गया, energy got conserved. Right? So this is basically your change in the form of energy during upward motion. Okay, let's see what is next. Bhargav, can you hear me? I can't hear you. Yeah, I can hear you now. Bhargav, name 6 different forms of energy. Sir, kinetic energy, potential energy. Okay, wait. Whenever you name different forms of energy, एक रूल है, काइनेटिक और पोटेंशियल को साथ में बोलना है एज मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है? मैकेनिकल एनर्जी हो गया, उसमें रोटेशनल, वाइब्रेशनल सब आ गया. हाँ सर. ठीक है? सो मैकेनिकल हो गया. मैकेनिकल के अलावा 5 बता चल. साउंड एनर्जी हो सकता है कि हो सकता है कि सर, थर्मल एनर्जी. वेरी गुड, न्यूक्लियर एनर्जी. वेरी गुड, केमिकल एनर्जी. वेरी नाइस. लाइट एनर्जी. यस सर. सर इतना ही याद आ रहा है. ठीक है, इतने हो गए ना, सारे हो गए.
you told all of them. मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी को हम हीट एनर्जी भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, और क्या क्या बोला तूने? और सर थर्मल, न्यूक्लियर, मैकेनिकल, साउंड, लाइट, केमिकल, यस, केमिकल एनर्जी, yes, और इलेक्ट्रिकल energy, correct, very good. So these are all different types of energy which we use in our day to day lives. Okay, great. Akshada, can you tell me the energy changes that occur in charging of a battery? Electrical energy changes into chemical energy. Electrical energy changes into chemical energy, correct. What about explosion of crackers? Chemical energy changes into nuclear energy. Oh, Heat or light energy. yeah, don't say nuclear. Yeah, heat or light energy. Yes, you can say, see, first we give them heat energy basically. Without that, the chemical energy will not get, transformed. So heat energy changes into chemical energy, changes into heat and light energy. So there are 3 stages. You give heat, then the chemical energy gets created. See, it is already stored, but it has to come out. So heat to chemical to again heat and light. And sound, heat, light and sound, you are right. Heat, light and sound, those are the outcomes. Yash? Yes, sir. State the energy changes in a microphone, mic. Sound energy into electrical energy. Correct. And what about washing machine? Washing machine. Electrical energy to Correct. Mechanical energy. mechanical. That's what it does, right? Mechanical work. Washing machine. Okay, good. Niyati? Niyati, you there? Name the process used for producing electricity from nuclear energy. The process used for converting or producing electricity from nuclear energy. न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या प्रोसेस होता है बेटा? फिशन. फ्यूजन तो अभी अभी चाइना ने शुरुआत की है, पता नहीं इसका यूज़ कब होगा, लेकिन फिशन होता है, फिशन, न्यूक्लियर फिशन. सो दोज आर नोन एज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. न्यूक्लियर पावर प्लांट में देर आर सम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज विच आर हैवी मेटल्स. उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड किया जाता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और हैवी मेटल लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है. और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हीट एनर्जी के फॉर्म में, उससे हम वाटर को हीट करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस होता है. वो स्टीम को हम लोग टरबाइन के ऊपर टारगेट करते हैं, टरबाइन रोटेट होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. आर्यन? What is degraded energy? Degraded. आर्यन, एक एग्जांपल देता हूं मैं. तेरे घर पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है?
क्या तू जितनी भी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है वो पूरी की पूरी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है क्या तेरे को? नहीं, थोड़ी हीट एनर्जी भी आती है। तो वो हीट काम की है क्या तेरी? इज इट यूजफुल हीट? तू उससे गर्मी लेता है क्या ऐसे हाथ रख के? रोटियां सेकता है, खाना पकाता है? कुछ नहीं। वो हीट कोई काम की है? बिल्कुल नहीं। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो कुछ ऐसी एनर्जीज भी प्रोड्यूस होती है जो हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, दोज आर नॉन यूजफुल और नॉन यूजेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. Whenever energy is converted from one form to another, there is some non-useful or non-usable form of energies produced along with it, and these are known as degraded forms of energy. Degraded energy एक बार मतलब एनर्जी एक बार डिग्रेड हो गई तो उसको वापस यूज नहीं कर सकते तुम. यू कैन नॉट यूज इट अगेन. ठीक है, सो दोज आर डिग्रेडेड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. रिमेंबर दैट. सो एनर्जी डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि द एनर्जी when it is converted from one form to another form, it gets converted into a non-useful form which cannot be you can say retrieved. उसको वापस यूटिलाइज नहीं कर सकते हम, और वो बल्ब का एग्जाम्पल बेस्ट है उसके लिए. ठीक है गाइस, तो तुम लोगों को थियरी तो आता है मतलब ठीक ठाक, बट डेरिवेशन में तुम लोग सब प्रॉब्लम है तुम लोगों को. वेरी फ्यू पीपल दे नो डेरिवेशंस. डेरिवेशन के ऊपर थोड़ा काम करो. अभी मैं इसका न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाला हूँ तुम्हारे साथ. मैं तुमसे ही करवाने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स. ठीक है, चलो. एमरीन, दिख रहा है न्यूमेरिकल नंबर 1. टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर प्लेस्ड एट हाइट्स. सब लोग नोट करेंगे, मैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ. एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, सॉल्व्ड एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल ऑलरेडी वीडियो में मैंने कर लिए. तुमने नहीं देखे हैं, तुमने सिर्फ थियरी पार्ट देखा है. इसके बाद वाला वीडियो सॉल्व्ड एग्जाम्पल का है, वो मैं तुम्हें देखने भी नहीं बोलूँगा. ठीक है, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर दिस वीक. खत्म. इसलिए मैं सारे न्यूमेरिकल्स अभी डिस्कस कर रहा हूँ. जितने भी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स है, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स है, प्लीज़ नोट इट डाउन. बिकॉज फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम लोग? एक तो फॉर्मूला है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv². दूसरा फॉर्मूला है mgh. फिर वर्क एनर्जी थियरम, दैट इज हाफ mv² - u². फिर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन वाला जो मैंने ऊपर बताया था. ठीक है, ये सारे फॉर्मूला यूज़ करेंगे. और इसमें हो सकता है कहीं हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ करें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड. राइट, चलो. एमरीन, एग्जाम्पल नंबर 1. टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर प्लेस्ड एट हाइट h and 2h. बॉडी A, बॉडी B. मास, इसका मास m है, इसका मास m है. हाइट, इसका हाइट h है, इसका हाइट 2h है. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. UA, UB. बता UA कितना होगा? UA मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी A. टेल मी. सॉरी, you are right, mgh. Can you tell me UB? m into g into 2h, that is 2 mgh. Now can you find the ratio? UA upon UB or UA is to UB कितना होगा? राइट, ये कितना हो जाएगा? 1:2. सिंपल. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था. चलो आगे जाते हैं.
This was a very pretty simple question, basic. Next question. Achal. Question number 4. A body of mass 5 kg. अच्छा याद रखो क्वेश्चन नंबर 4 है तो होमवर्क अभी बता देता हूँ. 2 और 3 होमवर्क है. 2 और 3 होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 4. A body of mass 5 kg. मास है 5 kg. ठीक है. Falls from a height of 10 meter. हाइट है 10 मीटर टू 4 मीटर. अच्छा ये h1 है और h2 है 4 मीटर. हाइट 10 से 4 हो रही है उसकी. कैलकुलेट द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. लॉस इन पीई. आंचल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी या बढ़ेगी? इसमें गिर रहा है नीचे, हाइट कम हो रही है. सॉरी हाइट 1 जो आएगा उसे हाइट 2 से. हाँ वो तो है, लेकिन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इनिशियल हाइट 10 मीटर थी, फाइनल हाइट 4 मीटर है. mgs लेना है. देखो इसमें ऐसा लिखो. लिखा है कि g को 10 से सब्स्टिट्यूट. यस वेरी गुड, आई नो दैट. बट तुम्हें लिखना कैसे है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू या और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, PEI माइनस PEF. ठीक है, इसमें लिखना है तुम्हें mgh1 माइनस mgh2. ठीक है, mg कॉमन ले लो, अंदर आएगा h1 माइनस h2. पहले तो फॉर्मूला रेडी कर लो, फिर वैल्यूज डालो. m कितना है 5, g कितना है, g कितना लेना है 10 और h1 माइनस h2 कितना है? ओके, सो व्हाट विल इट बी? 5 टाइम्स 10 टाइम्स 6, दैट इज 30 इंटू 10, 300 जूल. 300 जूल. ये हो गया तेरा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, आई होप सबने लिख लिया ये. नेक्स्ट क्वेश्चन आंचल, you have to tell me the total energy possessed by the body at any instant. थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है. total energy possessed by the body at any instant. किसी भी टाइम पे कितनी बॉडी के पास एनर्जी होगी? यस आंचल. बेटा काइनेटिक एनर्जी तो पता ही नहीं है क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी. ओके 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 कूल. बट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या लेंगे? PEI या फिर PEF? इनिशियल या फाइनल? Oh, good, good, good. You are right. ठीक है. So I'm going to write it in a slightly different manner, Anchal. Just have a look. हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? Total energy at any instant. Please सब लोग नोट करो. Total energy at any instant is equal to potential energy at maximum height. जितनी मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होती है
उतनी टोटल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे होती है। ये हमने वो कृषभ से क्वेश्चन करवाया था ना, जब मैंने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे मैक्सिमम होती है एंड देन व्हेन इट फॉल्स डाउन द पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। वही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। सो पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट होगा mgh1 विच इज 5 times 10 times h1 is 10, that is 500 joule. So this is the total energy at any instant, क्योंकि यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। सो टोटल एनर्जी हमेशा 500 ही रहेगी। प्लीज नोट इट डाउन। ये जो भी मेथड्स मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको अच्छे से नोट कर लो। कल मंडे है, कल मेरे साथ लेक्चर है। कल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर ख़त्म करेंगे। परसों मेरे साथ लेक्चर है, तब ये वाला चैप्टर ख़त्म करेंगे। सो इस वीक में 2 चैप्टर ख़त्म हो रहा है। जस्ट इमेजिन इस वीक में 3 चैप्टर की टेस्ट ड्यू हो जाएगी, जीएसटी, क्वाड्रेटिक एज वेल एज दिस सेकेंड चैप्टर। मैं 3 की तो नहीं लूँगा, लेकिन 2 की ज़रूर लूँगा, एक मैथ्स और एक फिजिक्स, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू बी हैवी, दिस इज़ अ हैवी वीक फॉर यू। इफ़ यू टेक इट लाइटली, प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, थ्योरम्स नहीं, डेफिनेशंस, डेरिवेशंस, देन इट विल बी अ डिफ़िकल्ट टेस्ट फॉर यू, ठीक है। सो पहले से बता रहा हूँ मैं व्हाट आई एम प्लानिंग दिस वीक। मुझे बताओ स्कूल में ये चैप्टर हो गया क्या तुम्हारा? अच्छा, जैसे स्कूल खुलेगी ना, फटाफट एक एक दिन में ख़त्म कर देंगे वो लोग। ये तो मैं एक एक सम करवा रहा हूँ तुमसे, ये नहीं करवाने वाले कोई भी, हमें पता है उनकी फितरत क्या है, ठीक है। सो दे आर जस्ट गोइंग टू जूम पास्ट। जैसे ही स्कूल खुला सब खत्म हो जाएगा। वी डोंट वांट टू टेक चांस। मेरे को स्कूल खुलने से पहले फिजिक्स के 3 चैप्टर कंप्लीट करना है, पहले 3 मशीन्स तक। केमिस्ट्री के 3 कंप्लीट करने, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स तक। और मैथ्स के एटलीस्ट मिनिमम मेरे को 6 चैप्टर करने हैं, और अभी हमारे 4 तो हो गए ऑलरेडी क्वाड्रेटिक के साथ। लीनियर इनइक्वेशन, बैंकिंग, जीएसटी एंड क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो वो भी हो जाएगा। थोड़ा मेरे साथ कॉपरेट करो, यू गाइज विल बी मोर देन रेडी व्हेन द स्कूल ओपन्स फॉर द एनी टेस्ट वॉट एवर दे टेक। और वैसे भी टेस्ट तो घर पे ही बैठ के देनी है, टेंशन किसको है यार, सही है ना। सबको 90% आने वाला है घर पे बैठ के, ठीक है। बट फिर भी आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट। लेट अस प्रिपेयर इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Some questions are already solved by me earlier. I'm just going to delete them. Delete. Okay, who is next after Achal? प्रिंस। प्रिंस, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू। उससे पहले एक होमवर्क ले लो, 5 and 6 होमवर्क है, ठीक है। फॉर यू नाउ आई एम गिविंग यू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में रीड कर रहा हूँ, तुम्हारे पास अगर टेक्स्ट बुक है तुम भी देख सकते हो। A vessel containing 50 kilograms of water is placed at a height of 15 meter above the ground. मास दिया है 50 kg, हाइट दी है 15 मीटर। Assuming the gravitational potential energy at ground to be 0,
what will be the gravitational potential energy of the water in the vessel? Yes, Prince. What formula will we use? Simple formula. We have to find the gravitational potential energy of water in the vessel. mgh only. Yes, very good. U is equal to mgh. So that is 50 times 10 times 15. That is 7500 joule. 7500 joules of potential energy the vessel will have. The water in the vessel will have. Yes, sir. Cool. This was easy. I hope everyone has noted it down. Next question. Question number 8 is homework. I am going to do 9. With whose help? Let me see. कौन आता है भाई? सिद्धि. अब it's a big question यार. यार तेरे पास ही ऐसे difficult questions क्यों आते हैं? सिद्धि, कोई बात नहीं, चलो. Maybe you are able to do it. A block A weighing 100 Newton is pulled up a slope of length 5 meter by means of a constant force 100 Newton as illustrated in the figure. मतलब ये जो force है ना सिद्धि, that is along the incline. Remember, the force is along the incline. मतलब जिस direction में force है उसी direction में body भी move कर रहा है. ब्लॉक ए को 100 न्यूटन उसका खुद का वेट है और उसके ऊपर एक फोर्स है जो 100 न्यूटन है, उसको एक्सर्ट कर रहे हैं और 5 मीटर इंक्लाइन प्लेन पे मूव करा के ऊपर पहुंचाया. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस होल सिचुएशन इज व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इन मूविंग अ ब्लॉक ए 5 मीटर अलोंग द स्लोप? टेल मी. सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है सिद्धि? राइट. अब यहाँ पे फोर्स बोला है वो लोग ने क्वेश्चन में, सी कांस्टेंट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन. डोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर. वेइंग 100 न्यूटन जो बोला है ना, वैसे ही बाद में काम आएगा, अभी तो काम नहीं आएगा. सो फोर्स इज 100 न्यूटन एंड इट इज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन? कितना उसको मूव किया? 5 मीटर. सो फोर्स इज 100 and the distance is 5. So the work done by the force in moving the block along the slope is 500 Newton. That's the first answer. ठीक है, simple था ये. Second, what is the increase in potential energy of the block? Now this is interesting. Increase in potential energy. Figure देखना ध्यान से. हाइट 3 मीटर. See, increase in potential energy, I'll just give you a hint, is final potential energy minus initial potential energy. A final potential energy होगी maximum height पे. What is the formula for gravitational potential energy? Okay, so here I will write mgh2 minus mgh1. So what is mg? We don't know the mass, but we know mg. What is mg? Yeah, mg is nothing but weight. Okay, so यहाँ पे मास नहीं दिया, सीधा वेट दे दिया है, तो हम लोग mg की जगह पे डालेंगे 100 और हाइट उसकी है 3 मीटर फाइनल हाइट माइनस 100 दैट इज mg टाइम्स 0 क्यों? क्योंकि इनिशियली तो वो ग्राउंड पे था ना. सो दिस इज 300 माइनस 0 विच इज 300 जूल. सो दिस इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, इतना समझ में आया?
Okay, the last question. Now think about it. Account for the difference. Everyone will note down this one because ये question में पूछा गया है मुझसे doubt last year. ठीक है. Account for the difference in the work done by the force and increase in potential energy of the block. यार मैंने जब वो ब्लॉक को ऊपर मूव किया तो मैंने जो वर्क डन किया वो 500 न्यूटन था, बट जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई बॉडी में वो 300 जूल्स है. आई एम सॉरी, एक गलती कर दी मैंने. वर्क डन भी 500 जूल होगा. सो मैंने जो वर्क डन किया वो 500 जूल था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई वो 300 जूल ही हुई. तो बाकी जो 200 जूल है वो कहाँ गया? अकाउंट फॉर द डिफरेंस मतलब वेयर डिड दिस you can say remaining 200 joules of energy gone? वो डिग्रेडेड एनर्जी है. कहाँ पे डिग्रेड हो गई वो? जब मैं इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक को ऊपर मूव कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन होता है ब्लॉक के बीच में, जो मुझे ओवरकम करना पड़ता है. ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच का जो फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए 200 जूल्स ऑफ एनर्जी यूज हो गई. ठीक है. सो दैट इज द डिग्रेडेड एनर्जी. यू आर राइट. सो प्लीज नोट इट डाउन. ये लिखा हुआ है आंसर वहां पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सब सिंपल वाले थे क्वेश्चन. Okay, question 10 and 11 are the homework. 10 and 11 are the homework. Rishi, you have to help me with question number 12. Yes, sir. Calculate the decrease in the kinetic energy of a moving body if its velocity reduces to half of the initial velocity. मतलब एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी v है, उसकी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रिड्यूस हो जाएगी? रिड्यूस तो होगी डेफिनेटली, स्पीड पे डिपेंडेंट है काइनेटिक एनर्जी. इसको सॉल्व करने के लिए ना केस 1 केस 2 ऐसे करके लिखेंगे हम. केस 1 केस 2. चल मास बता मेरे को. मास दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया है. नहीं दिया तो क्या लेंगे? सर. k is equals to half x. नहीं, मास क्या लेंगे? x. m लेंगे मास. ठीक है. केस 2 में भी मास m लेंगे, दोनों में मास m लेंगे. अच्छा, वेलोसिटी केस 1 में वेलोसिटी क्या लेंगे? v. केस 2 में वेलोसिटी क्या लेंगे? v/2. यहाँ पे बोला है ना वेलोसिटी रिड्यूसेस टू हाफ, v/2. बताओ केस 1 में काइनेटिक एनर्जी कितनी लेंगे? मास m है, वेलोसिटी v है. हाँ, k का वैल्यू क्या होगा? half mv square. करेक्ट. और ke2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू? हाफ m v/2 द होल स्क्वायर. क्योंकि अब वेलोसिटी v/2 है ना. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. दैट इज हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर बाय 4. दैट इज mv स्क्वायर बाय 8. पहले हाफ mv स्क्वायर था, अब हो गया mv स्क्वायर बाय 8. ये क्यों हुआ? क्योंकि वेलोसिटी हाफ हो गई.
So can you tell me the decrease in kinetic energy? ऋषि कैसे निकालेंगे decrease? Sir, initial velocity minus final velocity. Velocity नहीं बेटा, kinetic energy. Kinetic energy. Yes. So लिखो decrease in kinetic energy is equal to KE1 minus KE2. That is half mv square minus 1/8 mv square. इसमें mv square बाहर आ जाएगा, हाफ माइनस 1/8, 2 4s 8, 8 1s 8. तो ये हो जाएगा mv square ब्रैकेट 4 minus 1/8. That is mv square times 3/8. That is 3 mv square by 8. This is the whole solution. ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं जहाँ पे दे टेल यू टू फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ़ द मास इज रिड्यूस्ड और इफ़ द वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड, तब तुम्हें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी होती है या फिर रेशियो ढूंढना होता है. तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं. सर हमारे बुक में 12th क्वेश्चन अलग है. ओह ओके. कौन सा है इसमें? मेरे में दिख रहा है क्या? मेरे को बताओ ज़रा रीड करके. Two bodies of equal masses are moving with uniform velocities. Yes, मेरे में 13th है वो. 3 and 2 we find the ratio of the kinetic energy. Yeah. मेरे में और ये 3rd. क्वेश्चन है ही नहीं है हमारा. अच्छा है ही नहीं. ओके. मतलब बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगा इसलिए उन लोगों ने निकाल दिया. बट इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली. 13th मतलब मेरी बुक में जो 13th है, जो तुम्हारा 12th है, वो होमवर्क है. Okay, question number 16 is the next one which we are going to do now. तुम्हारे बुक में ये कार रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड बॉल ऑफ मास 0.5 kg, ये 14 और 15 है मेरी बुक में. तुम्हारी बुक में कौन से हैं ये दोनों? सेम 14 and 15. अच्छा, तो 14 and 15 भी होमवर्क है. एंड वी आर गोइंग टू डू 16th नाउ. अ कैनन बॉल ऑफ मास 500 grams, मास दिया है 500 grams, इज फायर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. मतलब इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड. फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल मतलब क्या है? ये v लेंगे हम लोग इसको. फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स मोमेंटम. तुम लोगों को करना है ये. मोमेंटम ढूंढने के लिए यूज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. यू कैन ऑल्सो यू डू मास इनटू वेलोसिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता. यू हैव 5 minutes. यू हैव टू सॉल्व दिस. क्लिक द पिक्चर एंड सेंड इट टू मी. कैनन बॉल वाला क्वेश्चन. Okay, I thought everyone got the answer. बहुत टाइम लग रहा है. Nobody is giving me any reaction. That is so scary. Actually, nobody is looking at my cam.
or some people have looked. My son, he ordered this for his birthday, just imagine. And he says that this is hacker mask. Blue. Thank you, Rosa. They got scared. Okay, I got some answers. Let me see. Good. Siddhi, your answer is correct. Very good, Bhargav. Good. Aanchal, your answer is correct. Aryan, your answer is also correct. Very good. Hammerine, momentum नहीं निकाला. I wanted momentum. Akshata, your answer is correct. Niyati, your answer is correct. Very good. I'm waiting for Yash, Prince, Krishabh. Rishi, yeah, Rishi, I've got it. तूने मास को चेंज करके दिखाया नहीं है ऋषि. 500 ग्राम्स को तेरे को 0.5 kg उसके बाजू में लिखना पड़ेगा. एमरीन, तेरे को भी मास के बाजू में 500 ग्राम्स के बाजू में यू शुड मेंशन इट इज 0.5 kg. ओके, चलो, गुड. लेट्स गो अहेड. Okay, let's do some more selected questions and finish this. अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा, बट कुछ है ऐसे क्वेश्चन अभी भी जो आई हैव टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू. Okay, the next homework is 17th one. A body of mass 10 kg moving with a velocity of 20 meter per second. In your book, whatever this question is, mark it as homework. उसके बाद वाला homework 19th है. A body of mass 60 kg has a momentum of 3000 kg meter per second वाला. उसके बाद वाला homework 20 है. How much work is needed to be done on a ball of mass 50 grams? उसके बाद वाला homework 21 है. How much energy is gained by a box of mass 20 kg when a man? वो वाला. ठीक है. So there are 4 homework. 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ तुम्हारे लिए अभी.
That is question number 18, 22 and 23. ठीक है, let's see. पहले question number 18. A truck weighing 1000 kgf changes its speed from 36 km per hour to 72 km per hour in 2 minutes. Okay? So सबसे पहले weighing 1000 kgf बोला है. Weight is equal to 1000 kgf और mass is equal to 1000 kg. ठीक है, जो weight होता है kgf में वही mass होता है kg में. kgf और kg में क्लोज रिलेशन. ठीक है, सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. अच्छा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 36 किलोमीटर पर आवर. प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन. इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. किसी को याद है किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या होता है? कैसे कन्वर्ट करते हैं? Multiply by 5 into 18. 5 by 18 मल्टीप्लाई बाय 5 by 18. ठीक है, सो 18 2s are 36, 5 2s are 10 meter per second. This is the initial velocity and the final velocity v is 72 kilometer per hour. ठीक है, so that is 72 by 5 by 18. So 18 4s are 72. That is 4 5s are 20 meter per second. This is the final velocity. And this all happens in 2 minutes. So time is equal to 2 minutes, which is 120 seconds. Time is equal to 2 minutes, which is 120 seconds. तो मैंने सब कुछ रिक्वायर्ड टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया. वेट दिया था, मास निकाल लिया, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड्स में, सब कुछ मुझे जो यूनिट्स में चाहिए था मिल गया. अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्क डन बाय द इंजन. नाउ आई एम गोइंग टू यूज वर्क एनर्जी थ्योरम. सो वर्क डन बाय इंजन is equal to change in kinetic energy of the truck. Work done by the engine is equal to change in kinetic energy, that is half mv square minus half mu square, that is half m v square minus u square, that is half times m, the mass is 1000, times v square minus u square, that is 20 square minus 10 square. ठीक है, so this will be 500. So 500 times 20 square is 400 minus 100, that is 500 times 300. So this is the change in kinetic energy in joules, 1,50,000 joules. So this is the work done by the engine. Now you can write it in scientific form. Scientific form मतलब scientific notation. So 1.5 times 10 to the power, the decimal point was here, it will shift 1, 2, 3, 4 and 5 places. So 10 raised to 5. If the decimal point shifts from right to left, you put positive number in the power of 10. Okay, so this many joules of work was done by the engine on the truck. That's the first answer. Next, the power. They have asked about the power. Now power is very simple. What is the formula for power? Power is work done upon time taken. What is the work done? Work done is 1,50,000, right? Yeah.
upon what is the time? 120 seconds. This all happens in 2 minutes. So you take time in seconds. 0 0 cut. 3 4s are 3 5,000s are, and this will directly get cut. This will be 1250 watt. 1250 watt. They've written in scientific form in the question. The answer 1.25 into 10 raised to 3 watt, but you can leave it as it is. It's not a big number. 1250 watt. This is the power developed. Okay, let's move on to the next question. 2 more questions to go. Last 2 questions. The last 2 questions, final 2, and they are very interesting questions. (22 and 23). A bullet of mass 50 grams. इसको थोड़ा ध्यान से नोट कर लेना शुरुआत से ही। बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम्स। देखो मास है इसका 50 ग्राम्स, इसको मैं पहले ही किलोग्राम में कर देता हूँ ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। 50 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 0.05 kg. Is moving with a velocity of 500 meter per second. Initial velocity 500 meter per second. Penetrates 10 centimeter into a still target. मतलब ये एक still target के अंदर penetrate करता है, मतलब it travels a distance inside a target. So that distance is 10 centimeter, which has to be written in terms of meter, which is 0.1 meter, and comes to rest. Final velocity 0 meter per second. Calculate the kinetic energy possessed by the bullet and average retarding force offered by the target. Okay, so this is the question. अब सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द बुलेट बहुत इजी है. हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ टाइम्स एम इज 0.05 टाइम्स वी स्क्वायर इज 500 स्क्वायर. सो 0.05 टाइम्स 500 टाइम्स 500 द होल अपॉन 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 5 टाइम्स 500 बाई 2. क्यों 5 टाइम्स 5? बिकॉज इसके 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाएंगे बाय यूटिलाइजिंग द 2 zeros विद 500. ठीक है, ये 2 ये 500 के साथ कट होके 250 बन जाएगा. सो दिस विल बी 25 टाइम्स 250. सो दिस विल बी 6250 जूल. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी possessed बाय द बुलेट इनिशियली. देखो बुलेट के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है, मीन्स बुलेट इज एबल टू डू दिस मच वर्क. बुलेट इतना वर्क कर सकता है. क्या करने के लिए वर्क करेगा वो? बुलेट पेनिट्रेट करने के लिए वर्क करेगा. जब वो पेनिट्रेट करेगा ना बुलेट, तो क्या होगा टारगेट के अंदर? जब वो पेनिट्रेट करेगा तो उसको एक रिटार्डिंग फोर्स एक्सर्ट होगा. तो ये रिटार्डिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करके बुलेट अंदर पेनिट्रेट करेगा. Bullet will do work against the retarding force in penetrating inside.
ठीक है, तो यही हमें रिटार्डिंग फोर्स कैलकुलेट करना है। इतना सबने लिख लिया है? Okay, next is the average retarding force offered by the target. Now see what we know. We know that initial velocity was 500 meter per second. Final velocity was 0 meter per second. And the distance covered is 10 centimeter, which is 0.1 meter. ठीक है, so I can find the retardation A. ठीक है, फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. सो v स्क्वायर इज 0, u स्क्वायर इज 500 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a टाइम्स 0.1. सो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2,50,000 plus 0.2 times A. So 0.2 times A is equal to minus 2,50,000. So A is equal to minus 2,50,000 divided by 0.2 minus 25 lakh divided by 2 is minus 12,50,000. This is the retardation मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. ठीक है, इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है अभी. Let us focus on the force. Now force is equal to mass times acceleration. Force ये retarding force है, याद रखना. और जो mass है बुलेट का, that is 0.05 kg. So 0.05 times minus 1250000. तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स माइनस 12500. सो माइनस 62500 न्यूटन. फोर्स आ गया रिटार्डिंग फोर्स माइनस 62500 माइनस 62,500. अब ये फोर्स नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो रिटार्डिंग फोर्स है. तो तुम्हें एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ही ढूंढना था. But when you say it is a retarding force, you don't write minus का sign, because so तुम final answer लिखोगे therefore retarding force is equal to minus 62,500. Sorry, minus नहीं लिखोगे यार, 62,500 Newton. That's the retarding force. Okay, so this was question number 22. थोड़े नंबर्स भी बड़े थे, इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज़ था, इसलिए मैंने ये किया है तुम्हारे लिए. So finally we are on the final question, last question. Let's complete it. I hope सबने मेरे साथ साथ लिख लिया ये. Next question, last question. A spring is kept compressed by a small trolley of mass 0.5 kg lying on a smooth horizontal surface as shown. Okay, मास दिया है तुम्हें ट्रॉली का. ये ट्रॉली से एक स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा है.
When the trolley is released, it is found to move at a speed of 2 मीटर पर सेकेंड. मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी ट्रॉली की 0.0 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड. What potential energy did the spring possess when compressed? Potential energy of compressed spring. Potential energy of the compressed spring. ठीक है. अब यहाँ पे याद रखना एक बात, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड रुझान वॉल्यूम कम करो. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रॉली. ट्रॉली की जो काइनेटिक एनर्जी है वही होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग. और हमें पता है ट्रॉली की काइनेटिक एनर्जी क्या है, विच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर. दैट इज हाफ टाइम्स मास ऑफ द ट्रॉली विच इज 0.5 kg. ठीक है, टाइम्स वेलोसिटी का स्क्वेयर, एंड द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट मूव्स. सो 2 स्क्वेयर, ये 2 और ये 2 का स्क्वायर कट जाएगा. 0.5 इंटू 2 इज 1 जूल. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज 1 जूल. दैट इज योर फाइनल क्वेश्चन. So not only we did the theoretical questions discussion करके, but also the numericals, and that too from the exercise. So now you have got much more clearer idea about what is kinetic energy, what is potential energy, and work energy theorem, and all the topics involved in this part. ठीक है, अब देखो एक ही पार्ट बचा है इस चैप्टर में, that is the C part. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बहुत ही सिंपल टॉपिक है. इसका जो वीडियो लेक्चर है मैं आज ही तुम्हें देने वाला हूँ. इसका लेक्चर हम लोग लेने वाले हैं ट्यूसडे, एंड वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर. ठीक है, सो आज ही इसको ख़त्म करो, इसकी नोट्स लेके. और इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, 6 न्यूमेरिकल्स हैं. सो आई विल सेंड यू I will discuss a couple of them with you when we do the live lecture, but I'm going to ask lot of questions from here, from the exercise itself. ठीक है, सो उसको वीडियो को अच्छे से देख के नोट्स लेना बहुत ज़रूरी होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि इसमें एक डेरिवेशन है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. लेट मी शो यू. या सो दिस इज़ द डेरिवेशन जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, पेंडुलम के टर्म्स में और फ्रीली फॉलिंग बॉडी के टर्म्स में. ठीक है, सो दिस you have to understand and be ready with it. So ये चैप्टर अपना ट्यूसडे को कंप्लीट हो जाएगा with everything, and मंडे को tomorrow I'm going to finish your quadratic equations. ठीक है. Sir, can you repeat the homework once? Yeah, the homework is no, the numericals only. मैंने कोई भी theoretical question दिया ही नहीं है होमवर्क में. ठीक है, न्यूमेरिकल्स में सेकेंड, थर्ड, बट जस्ट चेक द क्वेश्चंस एंड देन मार्क. इफ यू वांट आई कैन जूम इन फॉर यू. ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, 8th, 10th, 11th, 13th. 13th वाला तुम्हारी बुक में 12th है. उसके बाद है 14th, 15th, 17th,
and the last three are 19, 20, 21. That's it. ठीक है, so 6 and 9 and 12, 14 न्यूमेरिकल्स है होमवर्क. ट्राई के इसमें डाउट्स ना आए, ठीक है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी हम लोग ने काफ़ी डिस्कस किए. सो मेक श्योर दैट इसमें डाउट्स ना हो कोई भी. ट्राई करना. ओके गाइस, डन फॉर टुडे.